Hello everyone, I hope you're doing well. My name is Yash Parikh. Welcome to my channel for another video. I know I have been MIA since a very long time. मैंने कुछ भी ट्रैक का, ट्रिप का, कोई अनबॉक्सिंग, कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया. ऑलमोस्ट एक साल होने आया. So the real reason behind it is that I was changing my job during this time. So पहले I was preparing for the interviews and then as soon as I joined the new job, तो तब इतनी leaves नहीं होती that you can plan a travel. But now I am well set and I am ready to go for another adventure probably next month. And आगे भी बहुत कुछ plan किया इस साल में एक आध ट्रैक करने का and all those things. But those are just on the paper. Wasting any time, let's get things going. So monsoon आ रही है and it is time again to visit the beautiful Himalayas and go to those beautiful monsoon tracks and locations जो सिर्फ monsoon के लिए famous हैं. You know some of the amazing monsoon tracks that the trekking organizations run in our country. So you could go for a Hamta Pass trek, which is the best monsoon trek I'd say. Other monsoon treks would be the Valley of Flowers trek, which takes you to the beautiful Uttarakhand valley where the flowers bloom during the monsoon season. Another trek would be the Brigu Lake trek, which is near Manali. And the last trek which I would recommend would be the Great Lakes trek in Kashmir. So it is another beautiful trek. There are some more monsoon treks, but these four primarily are the treks that most of the people visit during the monsoon season. But क्या आपको actually पता है what are the things that you need to carry during a monsoon trek? नहीं ना? So let me give you a detailed list of what things you need to carry before you plan a monsoon trek and why actually do you need to carry them. So let's dive into that. Okay, so first thing on my list would be quick dry t-shirts. सो मानसून ट्रैक पे आप कॉटन टी शर्ट्स कैरी नहीं कर सकते बिकॉज बारिश कभी भी आ जाती है एंड इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ रेन कोट और पॉन्चो एट दैट टाइम तो आप गीले हो जाओगे. तो देन अगर आपके जो कॉटन टी शर्ट्स हैं वो गीले हो जाते हैं तो उनको बहुत टाइम लगता है सूखने में. सो इट इज़ बेटर दैट यू कीप क्विक ड्राई टी शर्ट्स एंड टेक एटलीस्ट 3 to 4 ऑफ देम सो दैट अगर कभी बारिश हो तो आप चेंज कर लो और वो वाले को सुखा दो तो इट विल ड्राई इन सम 4 to 5 hours विदाउट इवन द सनलाइट. So it is a must to carry. Quick dry t-shirts के लिए आप Decathlon जा सकते हो. Decathlon की जो केचुआ की t-shirts होती है those are very good. You can get those in around 300 or 400 and वो काफ़ी durable रहती है. So those can be good for a monsoon trek. So second one on my list would be quick dry pants. Quick dry track pants भी necessary हो जाती है क्योंकि उनका भी same reason है quick dry t-shirts क्योंकि cotton पैंट्स भी अगर आप पहनते हो गीली हो जाती है तो उनको तो काफ़ी टाइम लगता है सूखने में. सो इट्स बेटर टू कीप क्विक ड्राई पैंट्स एंड एटलीस्ट 2 to 3 पेयर्स रखना अच्छा है. क्विक ड्राई पैंट्स के लिए अगेन आप केचुआ ही प्रेफर करो बिकॉज केचुआ के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं. दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ट्रैक एंड आई मस्ट से दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय Decathlon और केचुआ. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई लाइक दोज प्रोडक्ट्स. So third item on my list would be the waterproof jacket. अब waterproof jacket monsoon trek पे बहुत important हो जाता है क्योंकि अगर light rain है and अगर आपने पीछे बैग लटकाया हुआ है and you think that इतनी बारिश नहीं है कि आपका बैग गीला हो जाएगा so आप सिर्फ एक waterproof jacket पहन सकते हैं और अंदर एक आपकी quick dry t-shirt होगी and you can go through the trek. मतलब अगर ज़्यादा बारिश नहीं है तो. Fourth item on my list would be poncho. Poncho is one of the most important things on a monsoon trek because what happens is that अगर आपने बैग लटकाया हुआ है and rain gets heavy so आप सिर्फ waterproof jacket के बेस पे आप पूरा टाइम नहीं निकाल सकते. आप गीले हो ही जाओगे, आपका बैग गीला हो जाएगा, अंदर पानी चला जाएगा and all those things will happen. So in this condition what you need is a poncho. Poncho क्या होता है? Poncho is nothing but a raincoat type of thing जिसमें आपके hands की एंट्री रहती है और it's like a single thing which goes till the knees. तो वो इतनी बड़ी होती है कि आपका बैग भी साथ में आ जाता है तो उसमें और वो उसमें एक हेड कवर भी होता है. सो उसमें बेटर ये हो जाता है कि आपके वैसे भी आपके नीज से नीचे का पार्ट गीला नहीं होगा अगर बारिश ऊपर से गिर रही है तो इट्स बेटर कि आपका बैग भी साथ में कवर हो जाए और आपके कपड़े भी गीले ना हो एंड आपका बैग भी गीला ना हो. तो poncho is very helpful in that. Waterproof jacket again from Decathlon. poncho भी आप Decathlon से ले सकते हो. और what you can do is that you can contact your trekking organization. They give these things on rent. मैंने जब हमटा पास किया था तो मैंने ट्रैक द हिमालयाज के साथ किया था
सो ट्रैक द हिमालयाज ने हमें ये सब इक्विपमेंट्स ऑन रेंट प्रोवाइड किए थे, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मैं और मानसून ट्रैक्स पे जाऊँगा कि नहीं, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मानसून ट्रैक पे एंड इट वॉज अ रियली गुड वन. सो आई विल प्रेफर अ मानसून ट्रैक अगेन. सो तब मैंने रेंट पे चीज़ें ले ली थी, बट नाउ इफ़ आई गो अगेन आई माइट बाय देम. सो फिफ्थ आइटम ऑन माई लिस्ट वुड बी वाटर प्रूफ शूज़. अब आप ऊपर से अपने आप को कवर कर लोगे, बट यू नीड गुड वाटर प्रूफ शूज़, क्योंकि हमटा पास जैसे ट्रैक पे आपको रिवर क्रॉसिंग आता है. एंड रिवर क्रॉसिंग में चलो अगर आप शूज़ निकाल के उसको लेसी से बांध के आप अपने गले पे लटका दो, बट जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है उसमें भी पानी चला जाता है. तो अगर आप बेसिक शूज़ लेके जा रहे हो, बेसिक रनिंग शूज़ या वो, तो उसमें पहली बात तो आपका टूटने का भी एक रिस्क रहेगा कि वो टूट भी सकते हैं, बिकॉज आपको बोल्डर्स क्लाइंब करने पड़ते हैं, आपको स्ट्रीम्स क्रॉस करनी पड़ती है एंड व्हाट नॉट. तो ऐसी कंडीशन में वाटर प्रूफ शूज़ होना बेटर है कि वो स्ट्रेंथ भी देंगे आपको एंड वाटर प्रूफ रहेंगे, तो इट्स बेटर. सो आई वुड रिकमेंड केचुआ के शूज़ जो कि डिकैथलॉन में मिलते हैं. उसमें जो आपका 3000 से जो शूज़ की रेंज शुरू होती है, यू कैन गो फॉर दैट. वो वाटर प्रूफ और स्नो प्रूफ भी हो जाते हैं. ऑफकोर्स आप हायर रेंज में जाओगे तो आपको बेटर उसकी ग्रिप मिलेगी, बेटर उसकी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, बट स्टार्टिंग रेंज वुड बी 3000 एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आई माई सेल्फ यूज दोज वंस, सो आई विल श्योरली रिकमेंड दोज टू यू. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स मिल जाएगी. सिक्स्थ आइटम ऑन माई लिस्ट वुड बी थर्मल. अब थर्मल आप दिन में तो नहीं पहनोगे, बट व्हेन यू गो ऑन अ मानसून ट्रैक द डेज आर कंपैरेटिवली वार्मर एंड अगर बारिश हो जाती है ज़्यादा तो नाइट्स तो ठंडी हो ही जाती है. बारिश नहीं होती तो भी नाइट्स आर रिलेटिवली कूलर. इन हमटा पास द टेम्परेचर कैन गो टिल 1 or 2 डिग्री इन अ कैंप साइट लाइक शियागोरू. सो इन दैट केस यू नीड अ थर्मल, क्योंकि आप बारिश पूरा ट्रैक करके आओगे बारिश में से, अगर आप गीले हो गए, सो यू नीड सम वार्मथ ऑन योर इनर लेयर्स. मतलब आप थर्मल का सेट ले सकते हो ऊपर नीचे का, एंड रात को यू कैन वेयर दैट वाइल स्लीपिंग टाइम, बट नॉट ऑन द ट्रैक. So likewise, the next item on my list would be a down jacket for night. थर्मल तो आप पहन रहे हो, बट एक डाउन जैकेट भी आप पहन के सोओगे तो इट विल कीप यू वार्म एंड पास यू थ्रू द नाइट इजीली. सो नेक्स्ट फ्यू आइटम्स ऑन माई लिस्ट वुड बी, एक तो वुलन कैप हो जाएगी आपकी. वुलन कैप आपको रात में भी काम आएगी एंड दिन में भी, जब तक बारिश नहीं है. एंड इफ यू आर फीलिंग कोल्ड यू कैन वेयर अ कैप. नेक्स्ट आपके हो जाएंगे ग्लव्स. ग्लव्स वाटर प्रूफ होना नेसेसरी है, बिकॉज आप अगर आपको ठंडी लग रही है, आपने ग्लव्स पहन रखे हैं एंड देन आप स्ट्रीम्स क्रॉस करो, यू माइट नीड अ सपोर्ट ऑफ अ रॉक जहाँ पे पानी कहीं हो सकता है, या बारिश में भी आपके हाथ गीले ना हो, तो वाटर प्रूफ ग्लव्स आर अ मस्ट. सो नेक्स्ट थिंग वुड बी सॉक्स. सॉक्स रखना काफ़ी ज़रूरी है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स रखने के, क्योंकि सॉक्स बहुत ईजिली गीले हो जाते हैं. एंड मानसून ट्रैक पे ऐसा ही होगा कि अगर आपने सॉक्स भी पहन रखे, आपने वाटर प्रूफ शूज़ भी ले लिए, बट शूज़ के अंदर अगर पानी गया है तो आपके सॉक्स गीले के गीले ही रहेंगे ऑल द टाइम, दे वोंट इवन ड्राई, एंड आपके लेग्स एकदम सॉगी हो जाएंगे व्हेन यू एंड योर डे. सो ये एक कॉमन चीज़ है मानसून ट्रैक पे होनी, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, बट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स रखना इज एडवाइसेबल. सो अनदर इंपॉर्टेंट आइटम वुड बी अ ट्रैकिंग स्टिक. सम पीपल माइट नॉट प्रेफर अ ट्रैकिंग स्टिक. उन लोग को बिना ट्रैकिंग स्टिक की कंफर्ट लगता है ट्रैक करना, बट मानसून ट्रैक में क्या होता है कि पानी कंटिन्यूस, अगर आप डिसेंड कर रहे हो तो पानी आपके साथ कंटिन्यूस नीचे बह रहा होगा. सो रॉक्स भी स्लिपरी हो जाते हैं, जो मड होती है वो भी स्लिपरी हो जाती है. सो ऐसे केस में अगर आप डिसेंड कर रहे हो तो आपके ट्रैकिंग स्टिक आपके पास है, तो वो सिंपल हो जाता है कि आप सीधा कहीं भी एक अच्छे ग्राउंड पे ट्रैकिंग स्टिक को ग्राउंड कर दो एंड यू कैन गो डाउन, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो. वो क्वाइट अच्छी रहती है ट्रैकिंग स्टिक, स्पेशली इन मानसून ट्रैक्स. नेक्स्ट आइटम्स वुड बी कैप एंड सनग्लासेस. जब तक सन है, आप ट्रैक कर रहे हो, इट इज़ गुड टू हैव सनग्लासेस एंड कैप, बिकॉज ये जो माउंटेन्स की धूप होती है वो क्वाइट हार्श होती है. तो वो अगर किसी दिन मानसून ट्रैक पे सन पूरे टाइम आउट है तो आपको रैशेस क्रिएट कर सकता है. सो आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो. कैप एंड सनग्लासेस तो होना ज़रूरी है. नेक्स्ट आइटम वुड बी अम्ब्रेला. अम्ब्रेला तब नेसेसरी होती है कि जब आप कैंप साइट पे पहुंच गए और आपको एक टेंट से दूसरे टेंट जाना है, या सपोज आपके टेंट से आप किचन टेंट में जाना चाहते हो, तो तब अम्ब्रेला काम आ जाती है, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो आप गीले हो जाओगे. उससे अच्छा अम्ब्रेला लेके जाओ और वहाँ पे कोने में रख सकते हो आप. अब इतने से में आप रेनकोट पहनोगे, निकालोगे, वो सब बहुत वो हो जाता है, इसलिए अम्ब्रेला इस मोमेंट पे काम आ जाती है. नेक्स्ट थिंग वुड बी टिश्यू पेपर्स. टिश्यू पेपर्स वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट्स होंगे वो बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स होंगे एंड यू माइट नॉट गेट वाटर. सो टिश्यू पेपर उस मोमेंट पे काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं. And probably the last item on my trek would be your personal medicines, because हम लोग इन ट्रैक्स पे हाइट गेन काफ़ी जल्दी करते हैं, तो AMS का
थोड़ा रिस्क रहता है. AMS इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस, सो यू नीड टू कैरी योर मेडिसिन. जिसको AMS का तो रहता है थोड़ा प्रॉब्लम, हाइट पे वॉमिटिंग, नोसिया, वो सब होता है, तो यू नीड टू कैरी योर मेडिसिन. बाकी अदर पीपल कैन गो विदाउट इट. मतलब ग्रेजुअली एसेंड होता है तो एक्लिमेटाइजेशन का टाइम मिल जाता है. एंड यही बात है कि आपको ट्रैक शांति से कंप्लीट करने का, यू शुड नॉट रश थ्रू योर ट्रैक, वरना AMS के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड इफ़ यू आर व्लॉगिंग, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके माइक में पानी ना चला जाए, बिकॉज उससे फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है. एज़ फॉर माई केस, मैं जब GoPro से व्लॉगिंग कर रहा था, तो सिंस GoPro इज़ वाटरप्रूफ, GoPro को कुछ नहीं होने वाला था. बट क्या हुआ, मेरे GoPro के माइक के अंदर पानी चला गया था, तो मेरी वॉइस बीच बीच में काफ़ी मफल्ड आई. आपने अगर मेरा हमटा पास ट्रैक का व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरी बीच में वॉइस कई बार मफल्ड हो गई है. तो तब एक तो मानसून ट्रैक का मॉइस्चर इतना ज़्यादा रहता है हवा में कि अगर पानी अंदर नहीं गया तो मॉइस्चर भी अंदर जा सकता है. तो आपको टाइम टू टाइम आप कहीं भी रुकते हो तो आप अपना GoPro अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उसका जो अंदर माइक में पानी चला गया उसको ऐसा हाथ पे जोर से स्लैश करके आप वो पानी निकाल सकते हो. वो चीज़ का ध्यान रखना. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कैरी ऑन अ मानसून ट्रैक. बाकी इफ़ यू हैव एनी अदर पर्सनल थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी, यू कैन गो अहेड फॉर दैट. आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो नाउ. आई नो बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आया है तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको बड़ा बनाऊँ, बट जितना कंटेंट होता है उतना ही वीडियो बना पाऊँगा मैं भी. सो आई होप यू गाइज गो फॉर दोज ब्यूटिफुल हिमालयन ट्रैक्स इन दिस मानसून सीजन एंड कैप्चर सम ब्यूटिफुल मेमोरीज. सो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आई नो मैं बहुत बीच में गायब हो गया था, बट नाउ आई एम बैक. सो if you are holding on to subscribe to my videos and just been watching my channel, so now this is the time to subscribe क्योंकि अब regular content आने वाला है. So hit the bell icon too if you want updates to all my videos. Yeah, I think that's it. Have a great day guys. Bye bye.